کے ذریعے پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان اپنے لانگ مارچ کے شرکاء سے خطاب کر رہے ہیں۔ اپنے سارے جو آج یہاں آئے ہوئے ہیں وزیر آباد میں، آپ کے لیے بھی اور جو بھی میرے پاکستانی دیکھ رہے ہیں، میں آپ سب کو مخاطب ہوں۔ سب سے پہلے یہ جو حادثہ ہوا، یہ جو حادثہ نہیں، یہ جو پلان کر کے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی گئی، میں پھر پہلے واضح کر دوں کہ یہ سپٹمبر میں پلان بنا تھا۔ سپٹمبر میں پلان بنا تھا۔ 24 سپٹمبر کو اس پلان کا میں نے پبلک جلسے کے اندر میں نے یہ بتایا کہ یہ پلان بنا ہے۔ میرے خیال میں جلسہ رحیمی اور خان تھا کہ یہ کس طرح دینی انتہا پسند کے اوپر ڈالیں گے۔ پلان بنا تھا ایجنسی، یہ جو جنرل فیصل، اس نے اور یہ جو دو نون لیگ کے جو قاتل ہیں، ماڈل ٹاؤن میں انہوں نے قتل کیے، لوگوں کو دن دہاڑے قتل کیے، لوگوں کو گولیاں مروائی پولیس سے۔ شہباز شریف نے ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ، پولیس مقابلے میں لوگ مارے، اس کی ہیومن رائٹس نے اس کے اوپر پوری رپورٹ دی ہوئی ہے۔ رانا ثناء اللہ کے اوپر جو 18 قتل ہیں، یہ عابد شلیل کے باپ نے کہا ہوا ہے، تو یہ قاتل اٹھ جائے گی۔ اس کا مطلب کہ عمران خان نے لوگوں کو کوئی توہین مذہب کیا، کوئی اس نے توہین رسالت خدا نخواستہ کی، اس کی وجہ سے یہ ایک اشتعال میں آ کے ایک دینی انتہا پسند نے قتل کیا۔ یہ سارا پلان تھا۔ پلان بنا رہے ہیں اور یہ پلان پھر وزیر آباد میں ایک دم کور اپ شروع ہو گیا کہ جی بس وہ ایک دینی انتہا پسند تھا اور وہ اذان نہیں تھی اور یہ اور سارا جو مذاق کیا گیا وہ بھی کور اپ تھا۔ پیچھے یہ بیٹھے ہوئے تھے جو پورے کنٹرول کر رہے تھے کہ نیریٹو کیا ہوگا۔ اور پھر جب یہ ہمیں پتا تھا، کیونکہ مجھے تو پتا تھا کہ پہلے ایک دم ادھر سے گولیاں آئیں، پھر دوسری طرف سے آئیں، یہ بھی کہا گیا کہ نہیں جی یہ تو صرف ایک، اور وہ کہتا ہے اگر کسی کو شک ہونا چاہیے تو وہ جب خود کہتا ہے کہ جی میں اکیلے نے کیا ہے، تو ادھر سے بھی پتہ چل جانا چاہیے کہ پیچھے سے اس کو طوطے کو پڑھایا جا رہا تھا۔ اور اب جب فورینزک ہوا ہے اس کنٹینر کا، تو واضح ہو گیا کہ دو مختلف قسم کی گولیاں استعمال ہوئی، یعنی دو شوٹر تھے۔ تو جو سارا ان کا پلان بنا ہوا تھا کہ سلمان تاثیر کا قتل ہوا، دینی انتہا پسند نے کیا، وہ سارا وہ ختم ہو گیا۔ اب دوسری چیز کہ آج میں خاص طور پہ ایک تو ابتسام کو، جو ماشاءاللہ ایک ہیرو ہے، کیونکہ میں نے جب اس کی فوٹیج دیکھی کہ ایک عام آدمی دیکھ رہا بندوق اس کے ہاتھ میں ہے اور اس کے باوجود وہ پکڑ رہا ہے، میں تو پہلے اس کو سلام کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے نوجوانوں میں اس طرح کا جذبہ ہے، یعنی ایسے ہمارے نوجوان ہیں جو کہ اپنی جان خطرے میں ڈال کے اور وہ بچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اور میں تو اس کو اب میں کیا کہوں گے، شکر ہے، میں تو اس کی والدہ کا بھی شکریہ ادا کیا کہ آپ نے ایسے اپنے بیٹے کو تربیت کی ہے۔ دوسرا جو سب سے بڑی ٹریجڈی تھی وہ معظم شہید کی تھی، اور وہ ہم سب سے دیکھی نہیں گئی وہ تصویریں کہ 3 بچے اس کے بیٹھے ہوئے ہیں اور باپ کو جگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ ہم انشاءاللہ پوری ذمہ داری ان بچوں کی ساری زندگی تک لیں گے۔ اب میں اپنی ساری قوم سے جو 2-3 آج باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے تو یہ، اب ہماری مارچ رکے گی نہیں، ہماری حقیقی آزادی کی جو تحریک ہے وہ رکے گی نہیں، وہ انشاءاللہ اور زور پکڑے گی، کیونکہ یہ جو اس کے بعد ہوا، اب میرے ذہن میں کوئی شک نہیں کہ جب تک اس ملک کے اندر ہم انصاف نہیں لے کے آئیں گے، ہم حقیقی طور پہ آزاد نہیں ہوں گے۔ اور ہم حقیقی طور پہ جب تک آزاد نہیں ہوں گے، یہ ملک میں خوشحالی نہیں آنے لگی۔ یہ اگر کسی کا خیال ہے کہ جنگل کا قانون ہو اور ملک خوشحال ہو جائے، خواب کے اندر تو ایسے ہو سکتا ہے، یا لوگ خواب دکھا سکتے ہیں، لیکن جو دنیا کا معاشرہ ترقی کرتا ہے
वहां सबसे पहले इंसाफ कायम करता है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में सबसे पहले अदल और इंसाफ कायम किया, फिर उसके बाद खुशहाली आई। अदल और इंसाफ इंसानों को आजाद करता है, ताकतवर को कानून के नीचे लेके आता है। और क्या हुआ इसके बाद? जो मुझे पता है हमारे ऊपर जुल्म किया, ये हमें पता है। इमरान खान लॉन्ग मार्च के शुरा से बजरिया वीडियो लिंक खिताब कर रहे हैं, इसके ऊपर पूरी तहकीकात हो। और नंबर 3 जो अरशद शरीफ से हुआ है, जो वीडियो दिखाई गई है टीवी प्रोग्राम पे कल, मेरा पहला सवाल यह है कि एक टीवी एंकर के पास कैसे वीडियो आ गई, जबकि उसकी वालदा जो पोस्टमार्टम के रिजल्ट्स मांग रही हैं उनके पास तो नहीं आई, टीवी एंकर के पास कैसे आ गई? और मेरा नंबर 2 सवाल यह है कि कौन इसकी तहकीकात करेगा? कौन अब कीनिया से क्यों नहीं इन्होंने कीनिया फौरी तौर पर लेटर लिखा कीनियन अथॉरिटीज को, गवर्नमेंट को लिखना चाहिए पूछने के लिए कि शुरू का तो बयान यह था कि जनाब वो रॉन्ग आइडेंटिटी पर मारा गया है, और अब वाज़ेह हो गया है कि ये एक प्लान करके तशद्दुद किया इसके ऊपर, उसके बाद गोली मारी गई। तो जब तशद्दुद किया, वो कौन था जिसको सबसे ज्यादा तकलीफ थी अरशद शरीफ की राइटिंग से, उसकी तहकीकात, उसकी जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, कौन था जिसको खतरा था उससे? कौन था जिसको इतना गुस्सा था कि पहले उसके ऊपर तशद्दुद करो फिर उसको कत्ल करो? ये चीफ जस्टिस साहब, ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। हमें कोई इत्मीनान नहीं है अब इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज इन कातलों के, इन चोरों के, मुजरिमों के हाथ में है। और ये जो आर्मी ऑफिसर है, इसके ऊपर किसको अब इत्मीनान है? मुझे पता है इन्होंने कवर अप कैसे किया, मुझे पता है कि आते साथ ही पंजाब पुलिस को किसने कंट्रोल कर लिया। गवर्नमेंट हमारी है, हम है पंजाब के अंदर, हमारी हुकूमत है, वो पुलिस कहीं और से कंट्रोल हो रही है। और अब पुलिस से मैं एफआईआर नहीं रुकवा सकता, और फिर कौन से किसने जाके उसकी टेप्स रिलीज की? ये कौन सी दुनिया में होता है? हम सर बनाना रिपब्लिक बनने जा रहे हैं। बनाना रिपब्लिक के अंदर उधर कोई इंसाफ नहीं होता, इसलिए वो बनाना रिपब्लिक है। वहां जंगल का कानून होता है, और ये जंगल का कानून बनने जा रहा है। और इस वक्त ये मुल्क को बचाना है आपने। देखिए, मुल्क इस वक्त इदारों के अंदर, कौम जो है वो इदारों के अंदर एतमाद खो बैठी है। इसको बहाल करने की जरूरत है। मुल्क इदारों के बगैर नहीं चलता, इदारे मुल्क को चलाते हैं। मगरब में और हमारे में और डेवलप्ड मुल्क और गरीब मुल्कों में फर्क ही ये है कि उनके इदारे मजबूत हैं, कोई कानून से ऊपर नहीं है। यहां मजाक बना हुआ है कि जी एक आपने ऑफिसर के ऊपर हाथ रख, जी डीजीआई सारी फौज को बदनाम कर दिया। ये अगर सोच आ जाए जिस माशरे में, मुझे बताएं, उससे ज्यादा तो दुश्मन इदारों का और मुल्क का हो ही नहीं सकता कि जी हमारे इदारे का नाम ही ना लें। मैं मुझे पता है कैसे चलती है एजेंसीज, मुझे अंदर से इंफॉर्मेशन आ रही थी। और मैं अगर प्राइम मिनिस्टर, मुल्क का एक्स प्राइम मिनिस्टर एफआईआर रजिस्टर नहीं कर सकता, और अगर यह कहना कि जी इमरान अपना सियासत चमकाने के लिए कर रहा है, मुझे सियासत चमकाने के लिए यह करने की जरूरत नहीं है। इस वक्त सारे पाकिस्तान के अंदर कहीं चले जाएं, एक अगर पार्टी कभी भी इतनी मकबूल हुई है पाकिस्तान की तारीख में, वो आज ये पार्टी है। और वो ये नहीं कि मैंने कोई बड़े कारनामे दिए हैं, वो इन चोरों को देख के कौम हमारी तरफ आ गई है। और इसीलिए हमें जरूरत नहीं पड़ी कि किसी के ऊपर इल्जाम लगाएं ताकि मेरी सियासत ऊपर चली जाए। ये मुल्क का मसला है, और चीफ जस्टिस साहब, ये मुल्क की फ्यूचर का मसला है, और ये फ्यूचर आपके हाथ में है। इस मुल्क की अदलिया के ऊपर सारी कौम देख रही है। इस वक्त लगता ही है कि बस एक मुल्क
तब तकड़े होते हैं, मैं फिर से आपको कहूं, जिधर कानून की हुक्मरानी होती है। और मैं आखिर में मैं खास तौर पर पाकिस्तान की वकला कम्युनिटी का खास तौर पर शुक्रिया अदा करता हूं कि जिस तरह वो खड़े हुए हैं। और मुझे खुशी ये है कि वकला ये समझ गए हैं कि अब इनकी जिम्मेदारी है रूल ऑफ लॉ, कानून की हुक्मरानी कायम करना पाकिस्तान की वकला कम्युनिटी की जिम्मेदारी है। और ये एक डिफाइनिंग मोमेंट है पाकिस्तान में। हर वो आदमी जो इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ चाहता है, और रूल ऑफ लॉ के बाद ही हकीकी जमहूरियत आती है, और हकीकी जमहूरियत ही हकीकी आजादी होती है। ये सब इकट्ठे चलते हैं। इस वक्त कुछ भी नहीं है यहां। तो मैं वकला के ऊपर भी आज उनका शुक्रिया अदा करने के बाद मैं उम्मीद लगाता हूं कि आप अपना रोल प्ले करेंगे। और मैं अपने सारे जो आज लोग आए हैं और जो आज जिधर से हमारी मार्च शुरू हो रही है, मैं आज सबको पैगाम देना चाहता हूं कि देखिए, ये इमरान खान के लिए नहीं हो रहा सब कुछ, ये आप सब के लिए हो रहा है। ये इस मुल्क के मुस्तकबिल की जंग है। ये इस कौम ने जीतनी है। आजादी कौमें अपनी आजादी की जंग जीतती हैं। इमरान खान तो मैं तो कोशिश ही कर सकता हूं, लेकिन आप सब ने इसमें शिरकत करनी है, क्योंकि मुस्तकबिल आपका है और आपके बच्चों का है। और जब तक कि एक कौम अपनी आजादी छीनती नहीं है, आजादी कोई प्लेट में नहीं देता, तो इसके लिए जद्दोजहद की जरूरत है। मैं तैयार हूं, जब तक मैं जिंदा हूं मैं इसकी पूरी जद्दोजहद करूंगा। जब तक मैं जिंदा हूं मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। और मैं इंशाल्लाह पिंडी पहुंचूंगा, और जब ये काफिला इंशाल्लाह पिंडी पहुंचेगा मैं इनको वहां रिसीव करूंगा, और मैं सारे पाकिस्तान से अपने लोगों को इनवाइट करूंगा, सबको कहूंगा आए, क्योंकि ये इस वक्त जो इस मुल्क की हकीकी आजादी में शिरकत नहीं करता, वो याद रखें कि वो अल्लाह ने हमारे दीन के अंदर ये हमें हुक्म दिया है कि जुल्म और ना इंसाफी के आप मुकाबला करो, जिसको कहते हैं जहाद। ये अल्लाह का होता है। आजादी के लिए खड़े होना ये अल्लाह का हुक्म है हमें। और अमर बिल मारूफ कि आप अच्छाई के साथ खड़े हो। ये जो चोर सारे इकट्ठे हो गए और ऊपर बैठ गए हैं, कौमें चोरों के खिलाफ और करप्शन के खिलाफ लड़ती हैं। कोई एक आदमी नहीं कुछ ठीक कर सकता। तो मैं सारी कौम को आज दावत देता हूं कि हमारे साथ इस मार्च में शिरकत करें। और इंशाअल्लाह जब मैं पिंडी, जिस दिन मैं आपको दावत दूंगा, आपने सब ने पिंडी आना है इस मुल्क की हकीकी आजादी के लिए। शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। इमरान खान लॉन्ग मार्च से बजरिया वीडियो लिंक खिताब कर रहे थे।